شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں زکریہ اور یحییٰ علیہم السلام کے واقعات۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا۔ زکریہ بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ بس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ زکریہ علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زائد تھی۔ بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ مریم آیات 1 تا 6 میں ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائیو۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورۃ الانبیاء آیت 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان کا بانجھ پن دور کر دیا، پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے،
اے मेरे परवरदिगार, मेरे यहां लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूं। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, इरशाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर यह बिल्कुल आसान है और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूं, हालांकि तू कुछ भी न था। इस पर जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। यानी जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे रब, कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए कि मेरे यहां बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं कि यह बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का इल्म हो जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे लिए अलामत यह है कि तू भला चंगा होने के बावजूद 3 रातों तक किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा। चुनाचे जब वो वक्त आया और वो किसी से बात करना चाहते तो कर नहीं सकते थे, अलबत्ता अपने जिक्र में सुबह शाम मसरूफ रहते, और ये निशानी थी इस बात की कि उनके यहां बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 11 में फरमाते हैं, अब जकरिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 39 में फरमाते हैं, चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। बस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलेमे की तस्दीक करने वाला सरदार, ज़ाबिते नफ्स और नबी है नेक लोगों में से। इंसान कितने ही बुलंद बाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहू की जात पाक वहदहू ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही यह है कि वो जब किसी बरगुजीदा इंसान से ऐसे उमूर सादिर होते देखता है जो अक्ल में नहीं आते, तो रोब या अकीदत की बिना पर पुकार उठता है कि ये हस्ती तो खुद अल्लाह है जो इंसानी शक्ल में आई है, या उसका बेटा है, या अल्लाह ताला की शरीक है। वो ये नहीं सोचता कि बिलाशुबह इन वाकयात का जारी होना अल्लाह की ताकत के जरिए है, जो बतौर निशान उस बरगुजीदा इंसान के हाथों जारी हुए। इसके बावजूद ये न अल्लाह है न अल्लाह का बेटा, बल्कि उसका एक पसंदीदा बंदा है, और ये उमूर अल्लाह ताला के खास कवानीन के तहत सिर्फ उसकी ताईद और उसकी सदाकत के लिए जाहिर होते हैं, वरना वो भी अल्लाह ताला के आगे उसी तरह मजबूर है जिस तरह दूसरी मखलूक। उन्हें खुशखबरी सुनाई गई कि बहुत जल्द याहिया नामी लड़का पैदा होगा, वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा। यहां कलिमतुल्लाह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है। इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम के यहां चांद जैसा बेटा पैदा हो गया। ये जो ही बड़े हुए, इनके पास अल्लाह ताला का पहला हुक्म पहुंचा, ए यहया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने उसे लड़कपन ही में दानाई अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने आपको 9 उम्र ही में हिकमत और दानाई अता फरमा दी। तफासिर में है कि बच्चों ने याहिया अलैहिस्सलाम से कहा, आओ खेलें। उन्होंने कहा, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए, और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 13 ता 15 में उनके औसाफ बयान फरमाते हैं, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम है। और हमने उन्हें अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी अता फरमाई, और वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनाहगार न था।
उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो फौत हुआ और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिर्फ 6 माह बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ के 6 माह बाद मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भी अल्लाह ताला ने वही भेजी ताकि अल्लाह ताला उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम जैसा लख्त जिगर अता करें। गोया याह्या अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे। याह्या अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अपने वालिद जकरिया अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत देने लगे। उस वक्त एक जालिम शख्स उन पर हुक्मरान था। उसने अपने भाई की बेटी से शादी करने का इरादा किया, अगरचे उनके दीन में यह हराम था। उसने याह्या अलैहिस्सलाम से इस शादी की इजाजत तलब की, इसलिए कि उनकी नबूवत का उस वक्त तक चर्चा हो चुका था और वो उनके दरमियान शरीयत के मुताबिक फैसले किया करते थे। फतवा लेने के लिए वो तोहफे तहाइफ के साथ आपकी खिदमत में आया। याह्या अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया और खुतबा दिया कि लड़की की अपने चचा से शादी हराम है। बादशाह और वो लड़की ये फैसला सुनकर गजबनाक हो गए। लड़की ने बादशाह से कहा, तुम याह्या को कत्ल करा दो, तब हमारी शादी मुमकिन है। बादशाह ने उनकी तरफ अपने सिपाही रवाना कर दिए। उस वक्त याह्या अलैहिस्सलाम मिहराब में नमाज अदा कर रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। इस तरह बादशाह ने अपनी भतीजी से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने आपके वालिद जकरिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया। इस तरह उस दौर के 2 नबी कत्ल कर दिए गए। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी रह गए। आप याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में नबी करार पा चुके थे। उस वक्त आपकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में हदीस इसरा के तहत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम के जिक्र में यह रिवायत लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा कि याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो ऐ हमारे नेक भाई और नेक नबी। सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम के तस्करे में यह आ चुका है कि याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हकीकी बहनें थीं। इसलिए हदीस मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना कि सैयदना याह्या और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई हैं, इसी रिश्ते की तरफ इशारा है। दुनिया में उससे ज्यादा शकी और बदबख्त कोई और नहीं हो सकता जो ऐसी मुकद्दस हस्ती को कत्ल कर दे जो न किसी को सताती हो और न किसी के मालो दौलत पर नजर रखती हो, बल्कि इसके बरक्स बगैर किसी तमा और उजरत के उसकी जिंदगी कौम की इस्लाह और खैर खाई के लिए वक्फ हो चुकी हो। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पर सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस सवाल पर कि क़यामत में सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक कौन होगा, ये फरमाया था, वो शख्स जो किसी नबी को या ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म करता हो और बुराई से बाज रखता हो। अक़वाम आलम में सिर्फ यहूदी ही एक ऐसी कौम है जिसने ऐसे पाकीज़ा नफूस को बेतहाशा कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा आयत 61 में फरमाता है, और वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। इंसान को अल्लाह के फजलो करम से किसी भी वक्त और किसी भी हालत में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूसी को पास नहीं आने देना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान पूरे खुलूस और पूरी दिल जमाई के साथ दुआएं करता है और मुसलसल करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी मकसद हासिल नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह दुआएं सुन नहीं रहा या कबूल नहीं कर रहा। इस किस्म की मायूसी और ख्यालात को कुफ्र करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता कौमों के संगीन हालात बयान किए हैं। इन कौमों की जानो माल में ऐसे हादिसात और पै दर पै ऐसी मुसीबतें पेश आईं कि अहले ईमान और उनके नबी पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसी सख्त घड़ियां
खुशियों का पेश खेमा हुआ करती हैं और मुसीबतों का दौर खत्म हो जाता है। जो लोग अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र पर भरोसा रखते हैं वो ऐसे लम्हात में मुसीबतों की दलदल से निकल जाते हैं और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक नई जिंदगी अता की जाती है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर नबूवत के वारिस के लिए बेचैन रहे, लेकिन अल्लाह ताला से यही हुस्न ज़न रखा कि ऐ परवरदिगार, मैं आपसे मांगकर कभी बेमुराद नहीं रहा। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र की आखिरी मंजिल आ चुकी थी और आपकी बीवी साहिबा बांझ थी। सारी जिंदगी गोद औलाद से खाली रही थी, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में करामत का ज़ुहूर देखकर आपका जहन अचानक इस तरफ मुंतकिल हुआ कि जो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि जाहिरी असबाब के बगैर हर रोज तरोताजा फल हुजरे में पहुंचा सकता है, वो यकीनन इस पर भी कादिर है कि मेरी इस आखिरी उम्र में मुझे औलाद की नेमत अता कर दे। हकीकत यह है कि दुआ करने वाले की नजर इस आलम असबाब में भी असबाब और वसाइल से कहीं ज्यादा मुसब्बिबुल असबाब पर हो तो वो कबूलियत का दरवाजा फौरन खुल जाता है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को दूसरे ही लम्हे एक अजीम फर्जंद की बशारत दे दी गई। औलाद की ख्वाहिश एक फितरी ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश कनात और ज़ुहद के खिलाफ भी कतन नहीं। कुरान करीम ने अंबिया की जुबान से इस किस्म की दुआएं और पुकार जिक्र करके ये हकीकत वाज़े कर दी कि अंबिया और रसुल जो ज़ुहद और कनात के मीनार होते हैं इस दवाजी जिंदगी से बरी नहीं है। इस्लाम में औलाद की ख्वाहिश को फितरी ख्वाहिश करार दिया गया है। ताहम यह नुक्ता भी जहन में रहना चाहिए कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम सिर्फ औलाद ही नहीं चाहते थे, सालेह औलाद चाहते थे ताकि वो उनके बाद दावत का काम जारी रखे। इसलिए आपने अपनी दुआओं को पाकीज़ा और नेक औलाद के अल्फाज के साथ खास किया। सूरह आले इमरान आयत 38 में है, उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to